हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोरी कैपिटल सागा। आज हम सबसे पहले जिस शेयर के बारे में बात करेंगे उसका नाम है यूपीएल लिमिटेड। इसको हम बाई करेंगे जिसका करंट मार्केट प्राइस है इस समय 740 के आसपास और इसका प्राइस टारगेट रहेगा 930 के आसपास। दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी शेयर में बाई करने से पहले हमें उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी का डिस्क्रिप्शन क्या है, उसके की आर्गूमेंट्स क्या हैं। तो मैं हमेशा हर दिन जब भी ट्रेडिंग डे होता है सुबह मॉर्निंग में कोशिश मेरी ये रहती है कि 10 और 11 से पहले पहले आपको ये वीडियो में अपलोड करके इस पर डाल दूं, ताकि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, जो हम लोगों को फॉलो करते हैं, तो वो जनून लोग हैं, जो जिनको जनून तरीके से ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, जिनको लॉस नहीं करना है, तो वो इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे कि अगर आप कहीं बाई कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से कंपनी डिस्क्रिप्शन के बारे इसका यूपीएल के बारे में। यूपीएल इज ए ग्लोबल लीडर इन एग्रीकल्चरल solutions and has a healthy mix of high value crops and high growth geographies. The company is well positioned to achieve sustainable growth as it is present across the agricultural input segment, ranging from seeds to crop protection products and post-harvest activities. RSTA's acquisition strengthens UPL's global position and helps it to emerge as an end-to-end solutions provider in the global agri-input space. The company has manufacturing facilities across 48 locations, earlier 34, and is present across more than 138 countries. The company's thrust on research and innovation has helped it garner 1023 patents and over 12,400 registrations. And key investment arguments are potential market share gains given a global scale, backward integration and focus on high growth biosolutions space would drive industry leading volume oblique revenue growth in UPL over financial year 22E to 24E. Expect it to beat financial year 22 revenue growth guidance of 7 to 10% given H1 financial year 22 growth of 14% YoY and as H2 is normally a strong growth period. Differentiated and sustainable solutions would be a key growth driver as the segment is growing a 15% to 20% rate and its gross margins are 1000 to 15% BPS higher than that of normal products. Thus, management's aim to increase share of differentiated and sustainable solutions into 50% by financial year 26, which would drive margin expansion to 24 to 25%. We expect UPL's EBI TDA to clock a 14% CAGR over financial year 21 to 24E and generate cumulative FCF of rupees 11,642 crore over financial year 22E to 24E, which would help UPL to further deleverage its balance sheet. Management target of net debt EBI TDA target to less than 2 times by March 2022. A 14% fall in UPL's price from 52-week high makes risk reward favorable given attractive valuations. Hence, we maintain buy rating on UPL with an unchanged price target of rupees 930. तो ये था कि यूपीएल को बाई करने के हमारे पास रीजन्स हैं, क्या क्या रीजन्स हैं, तो इनके बारे में मैंने डिटेल में थोड़ा डिस्कस किया है। ज़्यादा गहराई में तो नहीं गया, लेकिन इन शॉर्ट में जो भी मुझे लगता है कि डिटेल आपके साथ साझा करनी चाहिए, जो आपके साथ शेयर करनी चाहिए, तो वो मैंने जहाँ पर आपके साथ शेयर की है। तो डिसीजन आप लीजिएगा कि इसको आप बाई करना है। और बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों को जहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं रहता, लेकिन फिर भी आप लोग हमेशा एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर रखेंगे, तो उसके भी स्टॉप लॉस के बिना तो आप काम बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन मेरा अपना काम करने का तरीका है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो शेयर है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट शेयर जो है वो है एबॉट इंडिया लिमिटेड। इसको बाई करेंगे, जो इसका करंट मार्केट प्राइस है इस समय 18,343 एंड प्राइस टारगेट रहेगा 22,780 के आसपास। एंड कंपनी डिस्क्रिप्शन इज Abbott India Limited is part of Abbott's global pharmaceutical business in India and provides quality healthcare through a mix of global and local products for people in India.
The company offers high quality trusted medicines in multiple therapeutic categories such as women's health, gastroenterology, cardiology, metabolic disorders, and primary care. Abbott has strong expertise across product development, manufacturing, sales, and customer service, and is dedicated towards providing high quality, reliable products with expert clinical support. Abbott's top brand include the like of Thyronorm, Dafaston, Udilip, and Bertin Dupalac. And key investment arguments are Abbott India Limited revenues and PAT are expected to grow in double digits over next 2 years. तो कहने का मतलब ये है कि 2 साल में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो इसका जो प्राइस इस समय चल रहा है तो इसका डबल डिजिट मतलब जो इसका मे बी ये डबल हो जाए। जो अगर हम लोग आज इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मे बी एक्सपेक्टेड है कि 2 साल के अंदर हमारा जो जहाँ पर कैपिटल हम जो डिप्लॉय करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट हम डिप्लॉय करेंगे तो वो डबल हो सकती है, कंफर्म नहीं है। लेड बाई हेल्दी ग्रोथ इन IPM, presence in high growth therapy areas and a strong performance of top brands, sustains growth and leadership from existing brands, product portfolio expansion, efforts to improve the reach and penetration would be the key drivers. Leveraging the digital platform to cost effectively improve geographic penetration also bodes well. Given the strong growth prospectus and financial and a sturdy dividend payout, we reiterate our buy recommendation on Abbott with an unchanged 5-star grade of rupees 22,780। तो ये था Abbott इंडिया के बारे में। चलिए आज हम जानते हैं शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मीडियम टर्म ट्रेंड और आज का जो निफ्टी का और बैंक निफ्टी का ट्रेंड क्या है। तो जो शॉर्ट टर्म की ट्रेंड की बात करें तो निफ्टी की जो सपोर्ट है वो 17,000 के आसपास है, और अगर रेजिस्टेंस की बात करें कि अगर मार्केट और ऊपर जाती है तो 17,600 के आसपास है। और अगर मीडियम टर्म की बात करें तो निफ्टी का जो सपोर्ट है वो 16,600 के आसपास अगर मार्केट नीचे जाती है, अगर मार्केट ऊपर चले जाती है तो 18,600 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और आज की बात करें तो आज की जो पहली सपोर्ट है, अगर निफ्टी नीचे जाती है तो पहली सपोर्ट हमारी रहेगी 17,309। अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करके नीचे चले जाती है तो फिर हमारा रहेगा 17,252। अगर आप फ्यूचर बाई कर रहे हैं, अगर आप यहाँ से कॉल बाई कर रहे हैं तो पहली बात यह है कि आपको 17,147, बेशक आपको हफ्ते जो तो बिगिनर्स हैं, मैं बिगिनर्स की बात कर रहा हूँ, जो तो शुरू में बिगिनर्स हैं तो उनको अगर बाई करना है, अगर फॉर एग्जाम्पल ये फ्यूचर में बाई करना चाहते हैं तो 17,147 के आसपास उनको बाई करना चाहिए फ्यूचर। यहाँ पर या तो 147 और 200 के आसपास जहाँ से बाई कर सकते हैं इसको निफ्टी को, या फिर अगर आप कॉल बाई करना चाहते हैं। और रेसिस्टेंस, और लेकिन जब भी आप यहाँ पर कॉल बाई करें तो हमेशा कोशिश करें कि वो जो अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप बाई करें यहाँ से कॉल, अदरवाइज फ्यूचर बाई कर सकते हैं यहाँ से। तो रेसिस्टेंस की बात करेंगे, अगर मार्केट ऊपर चली जाती है तो पहली जो रेसिस्टेंस रहेगी वो 17,422 के आसपास है। अगर मार्केट उसको ब्रेक करके और ऊपर चली जाती है फिर नेक्स्ट हम लोग जो रेसिस्टेंस की जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो 17,533 के आसपास है। अगर मार्केट इसको भी इस रेजिस्टेंस की भी रिस्पेक्ट नहीं करती है तो फिर नेक्स्ट हम मान के चलते हैं कि 17,640 के आसपास इसकी रेजिस्टेंस रहेगी आज के दिन की। तो इस तरह से अगर आप जहाँ पर आप जो भी है अगर ऊपर जाती है तो पुट को 17,640 से और अपना 17,575 के आसपास आप जहाँ से फ्यूचर को जो भी है सेल कर सकते हैं, यहाँ से निफ्टी के फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो पहली सपोर्ट है 36,820 और दूसरी सपोर्ट है 36,550। और अगर आपको 36,350 और 450 के बीच में अगर बैंक निफ्टी पहुंच जाती है तो आप इसको यहाँ से बाई कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। और रेजिस्टेंस की बात करें तो पहली जो रेजिस्टेंस है आपकी अगर मार्केट ऊपर जाती है 37,370 है, और दूसरी जो रेजिस्टेंस आपकी 37,543 के आसपास है। और अगर मार्केट उसको भी ब्रेक करके और ऊपर चले जाती है तो 37,890 के आसपास है। और अगर जहाँ आपको ये 37,890 के आसपास अगर आपको ये मिलती है बैंक निफ्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है यहाँ पर, तो आप इसको जहाँ से जो फ्यूचर है इसका वो उसको सेल कर सकते हैं। या अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपको वहाँ से अपना कॉल या पुट के अकॉर्डिंगली बाई या सेल जो भी करना चाहें तो आप वहाँ से अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपना जो लाइक बटन प्रेस करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन के बटन को,
ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है तो आपको टाइमली आपको मिल सके और आप टाइमली उस पर जो भी अपना पेपर ट्रेड या जो भी आप करना चाहें तो उस पर काम कर सकें। बाकी आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी आपको पूछना है टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल या किसी की शेयर के बारे में, या कहीं आप किसी शेयर में ट्रैप हो चुके हैं जहां आपको लॉस हो रहा है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें। मैं उसको किस तरह से बाहर निकलना उसके बारे में मैं आपको पर्सनली एक्सप्लेन करूंगा। पर्सनली आपको जो भी होगा उसका पूरा एनालिसिस करके आपको बताऊंगा कि आप उस शेयर से बाहर कैसे आ सकते हैं ताकि आप उसमें लॉस से बच सकें। तो कोशिश रहेगी तो आप कर्ज करें। मैं कोशिश यही है कि मैं आप सबकी जो भी है हेल्प करूँ, जितनी मेरी नॉलेज है उतनी नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बाकी एक्सपर्ट तो कोई नहीं होता, लेकिन जितनी मेरे पास नॉलेज है वो उस नॉलेज के अकॉर्डिंगली मैं आप सबकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।